Good morning, student. This is lecture number 3, second part. Lecture number 3 is dismissed in between the recording due to some reason. Okay, we will continue this dependency of the kinetic energy on the velocity of the body. So let us start. We have the kinetic energy of the body is depend on the square of the velocity of the body. Okay, now we have two body of masses, same mass 5 kg, and we have to find out the difference due to the difference in velocity of the body, difference of kinetic energy due to the difference in the velocity of the bodies. Let us, the first body is 7 meter per second and second body is 8 meter per second of velocity. This is body A and this is body A. We have to find out the kinetic energy due to the body A and kinetic energy due to the body B. Half mv square, we have formula half mv square, half m5 v square 7 into 7. 7 7 49 and 49 into 5, that is 200, sorry कितना है 245 upon 2, that is 122.50. Okay, now we have kinetic energy of the body B, that is half mv square, half mv 8 into 8, 2 4 is 8, 4 is 0, that is 160 160. So from the both of the body, the velocity of the body B is greater than the velocity of the body by 1 meter per second. Okay, just 1 meter per second, but the difference due to the velocity of the body causes the difference in the energy of the bodies. Like the kinetic energy of the body B is 160 joule and the kinetic energy of the body A is 122.5 joule, which is due to the difference in their velocities. Okay, so these are the two causes or two factors on which the kinetic energy of a body is depend. Now we will discuss some examples. Example number 1. The example number 1, we will discuss the throwing of a ball in upward direction. Okay, let us, this is ground level. From the ground level, we have to throw a ball in upward direction, and ball of mass m kg up to a height h from the ground. ओके, सो बॉडी को थ्रो करने में ग्राउंड लेवल पर जो हमारी एनर्जी होगी, जब बॉडी के पास ग्राउंड लेवल पर एनर्जी होगी वो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी. Kinetic energy is maximum at the ground level and minimum at the highest point, whereas the potential energy highest at the maximum point and minimum at the ground level. Okay, so जब हम बॉल को लिफ्ट करेंगे इन अपवर्ड डायरेक्शन तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी के कारण बॉल ऊपर लिफ्ट होगी और उस पॉइंट तक जाएगी जहाँ तक उसकी वेलोसिटी जीरो ना जाए, क्योंकि लास्ट फाइनल पॉइंट में वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज जीरो, दैट्स व्हाई द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज जीरो, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर जाने पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ड्यू टू विच वो मूव नहीं करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी, सो दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी एट द पीक पॉइंट और द हाईएस्ट पॉइंट इज जीरो. Whereas at the ground level kinetic energy maximum which is equal to half mv square. जितनी भी एनर्जी होगी वो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगी और हाईएस्ट लेवल पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी. ओके, कन्वर्जन मैंने पहले ही बता रखा है, तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट. सेकंड एग्जांपल इज स्विंगिंग मोशन ऑफ द और स्विंगिंग एक्शन और स्विंगिंग मोशन. ओके, ऑफ पेंडुलम. पेंडुलम को हैंग करने पे इस पर अगर बॉडी को कुछ वेलोसिटी
ये तो लाइक इसका मोशन ऐसा होगा, ओके। लेट एट टाइम t इक्वल टू 0 मीन्स जब इसका मोशन स्टार्ट हुआ है तो t इक्वल टू 0 पे ये हम अपनी एक्सट्रीम पोजिशन, दीज टू आर द पोजिशन विच आर नोन एज एक्सट्रीम पोजिशन एंड दिस इज नोन एज द मीन पोजिशन, ओके। दिस इज नोन एज द, यहाँ पर एक ग्राउंड लेवल पे आएगा उसको बोलेंगे मीन पोजिशन ऑफ द, ये रहेंगे यहाँ, इसको बोलेंगे हम मीन पोजिशन। सेम केस यहाँ पे भी होगा, जब t इक्वल टू 0 पे बॉडी को यहाँ से मूव कराया जाएगा तो हाईएस्ट जो काइनेटिक एनर्जी होगी बॉडी की, क्योंकि मूव कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास होगी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जो हाईएस्ट होगी वो मीन पोजीशन पे होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन पे ग्राउंड लेवल से हाइट जो है वो 0 है, और जब हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। जबकि इस पॉइंट पर अगर हम मेजर करें, ये हाइट h1, लेट अस सपोज दिस इज h1 एंड ये हाइट h2, both are actually same, h1 and h2 are same, this is the second extreme point, both are extreme points, you have to remember, and this is mean position, this is extreme position, this is extreme position, and these points are known as extreme point of the motion of pendulum, okay। first extreme point and second extreme point में हमारे पास दोनों की दोनों पॉइंट पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे हमारे पास कुछ हाइट है और वो हाइट मैक्सिमम है, क्योंकि इसके बाद ये मूव नहीं करेगा। क्यों मूव नहीं करेगा? क्योंकि इस पॉइंट पे आने के बाद जो वेलोसिटी है बॉडी की वो 0 होगी, और जब वेलोसिटी बॉडी की 0 हो जाएगी तो इस पॉइंट पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे आगे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी अगर इस पॉइंट पे हम निकालेंगे तो हो जाएगी mgh2, ओके। h2 अगर कुछ दे रखा है हमको तो हम उसको निकाल सकते हैं, ये मास ऑफ द बॉडी, और इस पॉइंट पे हमारी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी mgh1, एक्चुअली h1 इक्वल टू h2, सो जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर होगी उतनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी होगी। whereas at the mean position we have the maximum potential, sorry, maximum velocity, that's why at mean position the total energy of the body is converted into the kinetic energy which is equal to half mv square, okay। these are actually the conversion also, these are example of conversion of energy also, okay। so conversion of kinetic energy and potential energy हमने 4-5 example देख चुके, okay। so I think the kinetic concept of kinetic energy and potential energy now is clear, okay। you have to write down all the things in your copy whichever I explain, okay, with example and all these examples, okay। now the next topic is conversion of energy or transformation of energy। you have some given example in your book 1 to 12, okay। all the example you have to read by yourself, but in the table example of transformation of energy we will discuss some of the example। photosynthesis, light energy into chemical energy by the plants, okay। first one is very simple। second one table fan, table fan is the electrical energy, mechanical energy। कैसे mechanical energy में कन्वर्ट हो रही? बिकॉज जब भी हम स्विच ऑन करते हैं तो वायर की थ्रू, ओके, वायर की थ्रू सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जितनी भी हमारे पास इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो रही है? इस फैन की रोटेटिंग मोशन। और ये रोटेटिंग मोशन कैसा है? मैकेनिकल मोशन। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी में कौन सी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है? एक्चुअली द इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। थर्ड, ट्यूबलाइट एंड बल्ब्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू लाइट एनर्जी, और फिर लाइट एनर्जी फर्दर किस में होती है? हीट एनर्जी में, क्योंकि बल्ब से हीट रिलीज होती है और हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फोर्थ वन, डोरबेल, इलेक्ट्रिक टू साउंड एनर्जी, यू आर फेमिलियर। फिफ्थ वन, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में जनरेटर का अपोजिट प्रिंसिपल यूज होता है, ओके। जनरेटर क्यों यूज होता है? जनरेटर इज यूज टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, whereas generator is used to convert the mechanical energy to electrical energy, okay। actually this is the actual phenomena, whereas in motor the conversion of electrical energy to mechanical energy,
क्यों? क्योंकि मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है, फर्दर वो क्या करती है, मोशन आती है उसकी, जो उसमें जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो मोशन में आते हैं और वो किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी। फिफ्थ वन, ड्राई सेल, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। ड्राई सेल में क्या फिनोमेना होता है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं और केमिकल्स की थ्रू जब उनमें रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के थ्रू सारी की सारी जो केमिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है इन ड्राई सेल्स में, क्योंकि अंदर हमारे पास दो कॉपर की रॉड लगी रहती है और उनके थ्रू यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होता है ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफॉर्मेशन हो। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव हीटर, यू आर फेमिलियर। नेक्स्ट, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिकल टू साउंड, माइक्रोफोन, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माइक्रोफोन में फिनोमेना क्या होता है, वहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा रहता है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इन द सेकंड फॉर्म। लाइक साउंड एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन माइक्रोफोन में, ट्रांजिस्टर ड्यू टू द कन्वर्जन ड्यू टू द ट्रांजिस्टर। 10th इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट वी हैड डिस्कस अर्लियर दिस, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है जो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वॉशिंग मशीन, वी आर फेमिलियर विद दिस। मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर एंड ग्राइंडर में अंदर एक इस टाइप का इक्विपमेंट लगा रहता है जो कि मूव करता है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास कर जाती है वो बहुत तेजी से मूव करता है, और वो किस में मूव, किसके थ्रू, वेलोसिटी उसमें बहुत ज़्यादा आती है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसमें काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट जनरेटर, जनरेटर वी विल डिस्कस। नेक्स्ट वन इज सोलर सेल। सोलर सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सोलर पावर जो है वो सबसे ह्यूज सोर्स है हमारे पास एनर्जी का, जिसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ वोल्टेक सेल और फोटोवोल्टेक सेल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोटोवोल्टेक सेल की थ्रू क्या करा जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, किसको, सोलर एनर्जी को, विदाउट एनी मोशन इन द बॉडी। क्या होता है इसमें, फिनोमेना यह है कि हमारे पास सेल्स लगी रहती है बहुत सारी, जिसमें सेमीकंडक्टर लगे रहते हैं, सेमीकंडक्टर यू विल नीड ऑल द थिंग्स इन हायर क्लासेस। ओके, जिसमें प्लेट्स लगी रहती हैं और इन प्लेट्स के थ्रू सारी की सारी सोलर एनर्जी किसमें होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। द एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल आर वेरी हाई बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ सेल देयर इज नो मूवमेंट टेक्स प्लेस एंड विच कॉजेज द लेसर लॉसेज ड्यू टू द फ्रिक्शन। इसमें फ्रिक्शनल लॉस बहुत कम होता है। 15, बर्निंग ऑफ वुड, केमिकल टू हीट, वेरी सिंपल। विंड मिल, विंड मिल में मैकेनिकल एनर्जी, अगेन जैसे हमारे फैन में रोटेटिंग रोटर लगे रहते हैं, ऐसी विंड मिल में हमारे पास बड़े बड़े फैन लगे रहते हैं जो कि फर्दर जनरेटर के थ्रू कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सारी की सारी टाइप की फॉर्म ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत बड़ा ह्यूज जो एप्लीकेशन है वो स्कूल में, ऑफिस में या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, कंपनी, सब जगह इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज है। 17 सेम, 17 और 14 सोलर सेल एंड फोटोवोल्टेक सेल। ओके, 18 स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में पानी को बहुत ज़्यादा हीट करा जाता है बॉयलर में, बड़े बड़े बॉयलर होते हैं इस शेप के, और इन बॉयलर के थ्रू इसमें पानी भरा जाता है इतना इस लेवल में, और बाकी फिर हीट यानी कि सारे का सारा पानी विद द हेल्प ऑफ बर्निंग ऑफ कोल एंड फ्यूल इसके नीचे बर्निंग और किया जाता है ताकि ये का सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो। फर्दर इस स्टीम को यूज करा जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए, लाइक दिस। टरबाइन इससे रोटेट होती है और वो टरबाइन जनरेटर से कनेक्ट होती है और जनरेटर फिर डायनामो के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, बायोगैस, केमिकल इनटू हीट। 20th, ऑटोमोबाइल इंजन, जैसे कि सारी व्हीकल में होता है, व्हीकल में इंजन लगा रहता है, पिस्टन इंजन और सिलेंडर अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू ऑटोमोबाइल में केमिकल एनर्जी यानी कि पेट्रोल और ऑयल के थ्रू जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इन मूवमेंट ऑफ द बॉडी, क्योंकि बॉडी में क्या आता है यानी कि व्हीकल में क्या आता है, मोशन आता है। कुकिंग गैस, एलपीजी, केमिकल एनर्जी है जो कि हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट, टेलीविजन, इलेक्ट्रिकल टू साउंड एंड लाइट एनर्जी। ओके, 23, केमिकल इनटू हीट एंड मैकेनिकल, दैट इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन। 20th, ओके, कैंप फायर, chemical energy into heat energy. Okay, these are the conversion of energy and you have to remember this type of conversion for your basic concept or example related to conversion of the energy. Okay, so student, thank you. Next of the part
the conservation of energy we will discuss in the upcoming lecture. The last topic in which we will also discuss about the conversion of energy in the dam, which is our nearby the major production of electricity. Okay, thank you so much.